Assalamualaikum. My name is Fatma Saber and you're watching our channel Sarim Islamic. Today the topic of one story and the story name is The Ants and the Grasshoppers. Watch now. Once there lived some ants and grasshoppers in a field. One summer day, the grasshoppers were having a lot of fun. They were playing, chirping, singing and dancing in the sun. Just then, a few ants happened to pass by the grasshoppers. Looked at the ant who seemed very busy. They were working very hard in the summer sun. One of the grasshoppers asked the ant, "Why are you all working so hard? Come and play with us in the field. We are collecting food for the winter." An ant replied. On hearing this, all the grasshoppers started laughing at the ants. But winter is so far away and we got plenty of food around us, said one of the grasshoppers. Sunny days will not last forever. You must store food for the winter because soon there will be nothing to eat and all of you will starve, replied one of the ants. The lazy grasshopper continued playing and wasting, listening to the advice of the ants. The ants continued their hard work. They stored lots of food in their homes. Soon the summer came to an end. The harsh and cold winter arrived. The careless grasshopper found themselves without food and shelter. They were starving and shivering with the cold. There was no food around and the fields were covered in snow. One of the grasshoppers thought about asking the ants. He saw that the hard-working ants were enjoying the winter happily in their warm and cozy homes. They had plenty of food for the winter. The grasshopper knocked at the ant's door and begged for some food. The ant laughed at the grasshopper and said, "You laughed at us when we were collecting food and now you come to us for help. Have you understood now that there is a time to work and a time to play?" The grasshopper replied, "Yes, I have realized my mistake. My friends and I were so foolish and careless. We have become ill and weak, so please help us." The ants took pity on the grasshopper and distributed some food among them. The next summer, all the grasshoppers worked harder to store food for the coming winter. They realized the importance of hard work, planning for the future and spending time wisely. एक दफा का जिक्र है कि एक खेत में कुछ चूंटियां और कुछ घास के टिड्डे रहते थे। एक गर्मी के मौसम में एक दिन घास के टिड्डे बहुत मजा कर रहे थे। वो खेल रहे थे, गा रहे थे और नाच रहे थे। इसी वक्त कुछ चूंटियों का उनके पास से गुजर हुआ। घास के टिड्डों ने इन चूंटियों को देखा कि ये बहुत मसरूफ हैं, ये बहुत सख्त काम कर रही हैं गर्मी में। और उनमें से एक टिड्डे ने चूंटी से पूछा, "तुम इतना सख्त काम क्यों कर रही हो? आओ हमारे साथ खेत में खेल लो। हम सर्दियों के लिए खाना जमा कर रहे हैं।" उनमें से एक चूंटी ने जवाब दिया। उन्होंने ये बात गौर से सुनी और
हंसना शुरू कर दिया चूंटियों पर। लेकिन सर्दियाँ तो बहुत दूर हैं और तुम अभी से खाना जमा कर रही हो। इर्द गिर्द बहुत खाना है। उनमें से एक टिड्डे ने कहा, तुम्हें खाना जमा करने की ज़रूरत है, फिर तुम्हें कुछ कहीं भी खाना नहीं मिलेगा। बहुत जल्द सारा खाना खत्म हो जाएगा। एक चूंटी ने जवाब दिया। लेकिन सारे सुस्त घास के टिड्डों ने खेलना शुरू कर दिया और अपना टाइम ज़ाया करना शुरू कर दिया, चूंटियों की नसीहत सुने बगैर। चूंटियों ने सख्त काम करना जारी रखा और उन्होंने अपने घरों में बहुत सारा खाना जमा कर लिया। जल्द ही गर्मियाँ चली गई और सख्त सर्दियाँ आ गई। लापरवाह घास के टिड्डे खाना ढूंढने लगे, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। वो सर्दी से कांपते रहे, लेकिन उन्हें खेत में इर्द गिर्द कुछ भी नहीं मिला। सब कुछ बर्फ से ढका हुआ था। एक टिड्डे ने चूंटियों से मदद मांगने का सोचा। चूंटियां जो गर्मियों में दिन भर काम करती रही और अब वो आराम से अपने घरों में इंजॉय कर रही थी। उन्होंने अपने घरों में बहुत सा खाना जमा कर रखा था। एक टिड्डे ने आकर चूंटियों के घर का दरवाजा खड़काया और कुछ खाना मांगा। चूंटियां उन पे हंसने लग पड़ी और घास के टिड्डों से कहा, तुम लोग हम पे हंस रहे थे जब हम सर्दियों के लिए खाना जमा कर रहे थे, तो अब तुम लोग हमारे से मांगने आए हो। अब तुम लोगों को समझ आई कि खेलने का वक्त और काम करने का वक्त अलग होता है। एक घास के टिड्डे ने जवाब दिया, हमें अपनी गलती का पता चल चुका है। मेरे दोस्त और मैं बहुत लापरवाह और बेवकूफ़ हैं। आगे के बाद हम हमेशा ख्याल रखेंगे। फिर चूंटियों ने उन्हें कुछ खाना दिया। उन सब में खाना बांटा और अगली गर्मियाँ उन्होंने मिलकर मेहनत की और अगली सर्दियों के आने के लिए बहुत सारा खाना जमा किया। उन्हें समझ आ गया कि हमें अपने काल की फिक्र करनी चाहिए और खेलने के वक्त खेलना चाहिए और काम करने के वक्त काम करना चाहिए। प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपको इसमें कोई खामी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।